Wel- Welcome guys. Today we are going to discuss about the demonstration part of the static routing. How static routing is going to be done on the Cisco Packet Tracer. So let's start with the static routing. So now, in this previous video, we have discussed about the how routers interfaces can be configured. So for this lecture, you have to watch the previous video anyhow. Then only it is going to be understood by you because here I'm skipping the part of what the router configuration. Okay. So now let's quickly go with the how structure is developed. So here we have three routers: router Nagpur, router Pune, and let's give the router name is what router Mumbai. Let's say router Mumbai, which is located at Mumbai. Okay. So there are the three. Here are the three routers. There are three switches also in subsequent areas, and in each switches there are two computers have connected. Now router नागपुर के नीचे वाला जो पार्ट है वो हो रहा है, इसका नेटवर्क है 1.0, उसका नेटवर्क है 1.0 का आईडी है। ये जो पुणे का राउटर है, पुणे के राउटर के नीचे जो हमारा नेटवर्क है वो है 2.0, और वैसे मुंबई के राउटर के जो लैन इंटरफेस है उसका है हमारे पास 3.0। और नागपुर और पुणे के बीच में जो हमारे पास जो नेटवर्क है उसका आईडी हमने दिया है 10.0 नेटवर्क आईडी, और पुणे और मुंबई के बीच में जो नेटवर्क हमारा है उसका आइडेंटिफिकेशन है 20.0। और ऐसे देख लेते हैं कि नागपुर के दो इंटरफेसेस है, एक तो लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस। तो लैन इंटरफेस पे हमने आईपी एड्रेस सेट किया है 1.1। अगर मैं माउस राउटर के ऊपर कर्सर आपके सामने है तो फास्ट इथरनेट 0/0 के ऊपर लिंक अप है, उसके उसका आईपी एड्रेस सेट है 1.1। वैसे ही हम नागपुर टू पुणे की तरफ जाने के लिए अगर वो जो इंटरफेस हमारे पास सीरियल इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस हमने 10.1 सेट किया हुआ है, यहाँ पर ये दिखा है 10.1। ऐसे ही पुणे का यहाँ पर 10.2 यहाँ पर लिया हुआ है इस साइड का, और इस साइड का 20.1 है। ओके, और नीचे वाला जो है वो 2.1 है। मुंबई का जो पुणे से मुंबई जो आने वाला है उसको 20.2 दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20.2, और नीचे जो जा रहा है तो 3.1। So let's go to the routing table first of all. So in order to do the routing table, what we have to do, we have to first of all show some information, show IP route, show IP route. So here this first Nagpur router, what the directly connected entry is there, only 1.0 and 10.0. If you go with the Pune router, so here also we can see, let's take show IP route, show IP route. Here only two networks are connected, net 2.0, 20.0. It is supposed to be three, 2.0 and 20.0. There is 10.0. So I think 10.0 is not set over here. Okay, one address is remaining. So let's add this address, IP address to this IP address. So for that purpose, go to the configuration mode. Go to the configuration mode of the router Pune. Go to the interface. That interface is what serial. Let's see what is serial interface. This 1/0, and then I give the IP address. IP address 192.168.10.2. 10.2 followed by subnet mask 255.255.0. Then give the clock rate. Clock rate is what 64000 by default, and then type the no shutdown command. Okay, so here we can see now there is a, oh yes, there is a IP address set 10.2. Now you can go the table, and the table is what router table. Here show IP route command is there. So you can see now here there are three networks are there. So directly connected network कौन से हैं पुणे के राउटर को, एक नागपुर का कनेक्टेड है उसका खुद का है, और इसका मुंबई की तरफ जाने वाला उसका भी है। मुंबई के राउटर की तरफ देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। यहाँ पर भी डायरेक्टली कनेक्टेड की एंट्री होनी चाहिए, तो शो IP रूट कमांड हमने टाइप की है। शो IP रूट कमांड से दोनों ही यहाँ पर दोनों नेटवर्क है। अभी हमारा पर्पज ये है, यहाँ पर देखिए कि ये जो पोर्शन है इसमें से हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे, तो ये स्टैटिक राउटिंग हमें यहाँ पर बाकी के एड्रेसेस लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर हम जाते हैं एक कंप्यूटर के ऊपर जाएंगे और हम यहाँ पर पिंग करने की कोशिश करेंगे 10.1, तो 10.1 तो पिंग होगा, लेकिन उसके बाहर जाने के लिए हमारे पास देखो 10.2 की बात कर रहे हैं, 10.2 पिंग नहीं हो रहा है, मतलब मेरे पैकेट्स नागपुर के एक एंड से मुंबई पुणे की तरफ जा नहीं रहे, मतलब एग्जिट इंटरफेस मेरा सेट नहीं है। तो इस पर्पज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए राउटिंग इज मस्ट है। तो राउटिंग के लिए हमें सबसे पहले स्टैटिक राउटिंग का सिंटैक्स है।
स्टैटिक राउटिंग का सिंटैक्स में देखो, कमांड है आईपी रूट, देन डेस्टिनेशन नेटवर्क वी हैव टू give, then destination network, then subnet mask of that destination, then next hop address और exit interface, और administrative distance और permanent ID हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। ये तीन हम यहाँ पर destination address, mask and then exit interface, ये तीन चीजें हम यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं और हम फॉलो करते हैं उस राउटर के ऊपर, कौन से वाले, नागपुर के राउटर के ऊपर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, सॉरी ConFT, राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। जैसे ही राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में गए, वहां पर हमें कमांड टाइप करनी है आईपी रूट। आईपी रूट में भी हमारे पास देखो, नागपुर से हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। नागपुर के एंट्री में हमारे पास क्या क्या नहीं था, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो ही है, 1.0 है, 10.0 है। यहाँ पर हमारे पास 2.0 नहीं है। 192.168.2.0 इज माई destination, followed by subnet mask 255.255.0. Now here third field is very important, guys. And what is the third field? Third field is exit interface. So नागपुर से पैकेट्स को आउटबाउंड करने के लिए हमारे पास ये इंटरफेस है, लेकिन यहाँ से आउटबाउंड करने के लिए हमारे पास एग्जिट इंटरफेस हो गया 10.2 वाला। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 192.168.10.2 का जो एड्रेस है वो मेरा एग्जिट इंटरफेस हो गया। तो 10.2 विल बी एग्जिट इंटरफेस। ये हो गया हमारा एक नेटवर्क। तो 2.0 की एंट्री हमारे पास नहीं है। उसके बाद उसके साथ साथ 20.0 की एंट्री भी हमारे पास नहीं है। एग्जिट इंटरफेस हमारा सेम रहेगा। हम ये कमांड फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद हमको लर्न करना है एड्रेस जो है 3.0। 3.0 भी लर्न करना है। 3.0 लर्न करना है। चलो, ये तीन कमांड हमने टाइप कर लिए। अभी हमारे राउटिंग टेबल में देखते हैं कि राउटिंग टेबल में बाकी चीजें आई है क्या। शो आईपी रूट कमांड हमारे पास है, शो आईपी रूट। जैसे ही शो आईपी रूट कमांड टाइप करेंगे, देखो तो हमारे पास बाकी के नेटवर्क भी आ गए। कौन से 2.0 आ गया, 3.0 आ गया और 20.0 आ गया। इसके पहले हमारे पास दो ही एंट्री थी जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड थी यहाँ पर। तो सेम फंडामेंटल्स हम यहाँ पर पुणे के राउटर पे चलते हैं। यहाँ पर 3 एंट्री है, 2 एंट्रीज हमारे पास नहीं है। तो 2 हमें नेटवर्क को लर्न करना पड़ेगा। राउटिंग इज व्हाट, लर्निंग द अदर नेटवर्क आइडिया नेटवर्क्स। आईपी रूट करके कमांड है, आईपी रूट। उसके बाद डेस्टिनेशन 192.168। अभी पूना के राउटर को डेस्टिनेशन कौन सा है, डायरेक्टली कनेक्टेड 10.0 है, 20.0 है, 2.0 है। उसको क्या नहीं है, 1.0 नहीं है। उसका सबनेट मास्क भी दे देते हैं 255.255.0। ये सबनेट मास्क है। एग्जिट इंटरफेस, अभी पूना के राउटर को एग्जिट इंटरफेस हमारा हो जाएगा 10.1 वाला, क्योंकि यहाँ से पैकेट इस इंटरफेस से बाहर जाने वाले हैं। तो हम कर लेते हैं 192.168.10.1। ओके, ये कमांड टाइप कर ली। उसके बाद हमको और क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए 3.0। हमको क्या चाहिए, 3.0। लेकिन उसका एग्जिट इंटरफेस अलग हो जाएगा। एग्जिट इंटरफेस क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, तो हमारे पास 20.2 हमारा एग्जिट इंटरफेस है। यहाँ पे कर लिया। चलो, टेबल में एंट्री आई कि नहीं शेयर कर लेते हैं। नाउ शो आईपी रूट कमांड है, शो आईपी रूट कमांड। यहाँ पर देखो पांचों के पांचों एड्रेस आ रहे हैं। मतलब हमने स्टैटिकली ये जो स्टैटिक एस ये लर्न किया हुआ है, ये सी जो स्टैंड कर रहा है ये कनेक्टेड है डायरेक्टली एंट्रीज। तो पूना के राउटर में भी पांचों एंट्रीज आ गई। मुंबई की तरफ चलते हैं। मुंबई की तरफ चलने के लिए उसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कमांड है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहाँ पर हमें आईपी रूट कमांड देनी है। आईपी रूट में डेस्टिनेशन 192.168 डॉट, अभी मुंबई के राउटर को डेस्टिनेशन कौन से हैं, उसका खुद का है 20.0 और 3.0, लेकिन उसको क्या चाहिए, 10.0 नहीं है। फॉलोड बाय सबनेट मास्क 255.255.255.0। उसके बाद एग्जिट इंटरफेस। तो मुंबई के राउटर से एग्जिट इंटरफेस हमारे पास हो गया, ये हो जाएगा, दैट इज व्हाट 20.1 हो जाएगा। सो 192.168.20.1 ये हमारा एग्जिट इंटरफेस बन जाएगा। ऐसे ही हमको क्या चाहिए, और हमको और चाहिए व्हाट वी रिक्वायर्ड अगेन 2.0। 2.0 भी हमारे पास नहीं है। तो 2.0 हमारे पास 2.0 की कमांड टाइप कर देते हैं। So let's take 2.0। 2.0 एग्जिट इंटरफेस हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हमको क्या नहीं है हमारे पास, और हमारे पास 1.0 नहीं है। 1.0 को भी ले लेते हैं। तो तीनों एड्रेस हमने टाइप कर लिए। अभी चलते हैं उसके राउटिंग टेबल में आया कि एंट्री देख लेते हैं। लेट्स टेक द एंट्रीज
कमांड इज व्हाट, शो आईपी रूट कमांड इज देयर, यहीं पर भी पांचों के पांचों networks आ गए. So we have learned this all five networks via static routing. Here S stand for what? Static routing. Now let's go to the first computer and just try to ping. So first of all, just ping this self computer itself. Whether it is pinging, खुद को आंसर दे रहा है बॉस, इट इज गिविंग द आंसर. हमारे खुद को कंप्यूटर को आंसर जा रहा है. कंप्यूटर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं उसके खुद के राउटर की तरफ 1.1 की तरफ, यहाँ पे आंसर आ रहा है. उसके बाद उसके बाहर जाने की कोशिश करते हैं जिसका एड्रेस है 10.1. 10.1 से हम यहाँ से पैकेट बाहर निकल रहे हैं, यहाँ तक हम आ गए. उसके बाद हम 10.2 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं. नाउ इट्स गिविंग रिप्लाई, यस ओके, दिस इज गिविंग रिप्लाई. तो यहाँ तक हम पूना के राउटर तक आ गए. पूना के राउटर से बाहर हम जाने की कोशिश करते हैं. लेट्स गो टू द 2.1 ऑल्सो. 2.1 को भी रिप्लाई रहा है, मतलब पूना के नीचे के नेटवर्क में जा रहा है. तो नाउ हम यहाँ पर अभी ये जो पिंग करेंगे तो सब ऑल द कंप्यूटर्स आर गोइंग टू बी पिंग ऑन वाइस वर्सा. So what we have did, we have configured the static routing on this particular available network for to check the reachability and to how the network addresses are going to be learned. So here again we need to consider all the IP addresses to be very carefully assigned. So what we have here, 5 networks are there. So 1.0, 2.0, 3.0, 10.0 and 20.0. In every networks we have to set the interfaces of the router, that is WAN interfaces and LAN interfaces. Generally WAN interfaces having the serial ports and LAN interfaces having the fast network. That address is to be done. And generally again more about this routing के लिए हमारा सेपरेट वीडियो है, उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक राउटिंग थरोली. लेकिन यहाँ पे हमने शो किया है ओनली डेमोस्ट्रेशन पार्ट कि स्टैटिक राउटिंग को हम इनेबल कैसे करेंगे. अगर यहाँ पर हमने अगर एक कमांड टाइप करते हो, कमांड है शो आईपी प्रोटोकॉल. शो आईपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर उसका आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई भी प्रोटोकॉल शो नहीं किया हुआ है. जब हम डायनामिक राउटिंग के लिए कॉन्फ़िगर करने जाएंगे तो डायनामिक राउटिंग में कहीं ना कहीं हमारे पास शो आईपी प्रोटोकॉल अब टाइप करेंगे तो उसके थ्रू जो हमारे पास दूसरे देखिए यहाँ पर आरआईपी प्रोटोकॉल है, ईआईजे प्रोटोकॉल है, बीजेपी प्रोटोकॉल्स है, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल है. तो इसके थ्रू हम ये एड्रेसेस लर्न करेंगे. जनरली व्हाट इज राउटिंग? राउटिंग इज व्हाट सिलेक्टिंग द बेस्ट पाथ एंड लर्निंग द एड्रेसेस. बिकॉज राउटर में राउटिंग टेबल होता है, तो राउटिंग टेबल में हमारे पास एंट्रीज है. जब तक पूरे के पूरे नेटवर्क की एंट्रीज आएंगी नहीं तब तक हम दूसरे नेटवर्क की तरफ रीच नहीं हो सकते. और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा डेस्टिनेशन कौन है और किसके थ्रू हम लर्न करना है. तो हियर यू कैन सी कनेक्टेड है, ये लर्न किसके थ्रू किया है. देखो यहाँ पर डिफरेंस है 192.168.0.2.0 वाया इट लर्न वाया 10.2 बिकॉज ये एग्जिट इंटरफेस मेरा ये है, तो 10.2 से ये लर्न किया हुआ है. ओके, आई होप गाइस कि आपको स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. इसके आगे हम देखने वाले हैं डायनामिक राउटिंग कैसे इनेबल करते हैं. यहाँ पर कोई सवाल नहीं आना चाहिए, हमने सभी एड्रेसेस को यहाँ पर पिंग किया हुआ है. और यहाँ पे मस्ट है कि आपको एनी हाउ यू हैव टू सेट दिस डिफॉल्ट गेटवे. डिफॉल्ट गेटवे जनरली 1.1 मतलब क्या उस नेटवर्क का देना जरूरी है, पहला एड्रेस ध्यान में रखने के लिए. और इसमें भी जो हमने एड्रेसेस दिए वो स्टैटिक ही दिए हैं, डीएचसीपी के थ्रू नहीं किए. तो हमारा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन का अलग वीडियो है आईपी एड्रेसेस को गेन करने के लिए, तो वो देख सकते हैं आप. ओके, और सभी राउटर्स और सभी कंप्यूटर्स हमने जस्टिफाई करके आपको दिखा